پول کنگے بازیں گوشندہ یہ گوشتاشتگاں بازیں گوشندہانی سارا پٹ پول کو تا تو منی اولی رندہ من گلزار صاحب نے مراواں منا گوئے جو سشیں کہ گلزار صاحب نور اللہ یا استاد نور عزم و فنہ کجام چھما گنچاری تو آوتی چیزیں اگر نوشتے کو تا یا گپ جاؤں تھی ترشانہ بکا وجہ گلزار گیچ کی شکریہ اسحاق رحیم صاحب آرٹس کونسل کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے نہ صرف مجھے اسٹیج دیا بلکہ ہمارے بلوچی زبان کے عظیم فنکار محترم جناب نور محمد نورل صاحب کے فن کا اعتراف کیا اور انہیں ایوارڈ کے لیے نامزد کیا. اب میں بحیثیت بلوچ رائٹر اور ایک عام شہری کے بیوٹمز کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور اسپیشلی آپ سب کا کہ آپ استاد نورل سے متعلق جاننے سننے کے لیے یہاں پہ تشریف فرمائیں. چونکہ وحید نور صاحب نے, میں بیسیکلی بلوچی کا رائٹر ہوں, لیکن وحید نور صاحب نے بڑا اصرار کیا کہ آپ نے ہر حال میں اردو میں استاد نورل پہ کچھ پڑھنا ہے, تو میں اسی حساب سے تیاری کر کے آیا تھا. تو میں مختصر استاد نورل پہ کچھ کہوں گا. فنون لطیفہ میں جو مقام موسیقی کو حاصل ہے وہ کسی اور فن کو نہیں ہے. موسیقی نہ صرف سامع پر اپنا اثر دیر تک برقرار رکھتا ہے, یہ یاسیت, افسردگی, مغمومیت, فراق, وصال, خوشی و کامیابی اور زندگی کے جملہ مواقعوں پر فوری ساتھ دینے والے فن کا نام ہے. بلوچی موسیقی بلوچ کی لائف سائیکل کا بھرپور احاطہ کرتی ہے. یہ اپنی بھرپور جمالیاتی حسن کے ساتھ بلوچوں کی ثقافتی و قومی پہچان کا اہم جز ہے. بلوچی موسیقی برصغیر کی دیگر زبانوں کی موسیقی سے بالکل جداگانہ حیثیت کی حامل ہے. اس کی بنیادیں شاستری موسیقی کی راگ ٹاٹ و راگنیوں کے بجائے زیروک پر قائم ہیں. بلوچی موسیقی میں کلاسیکل داستان ابتدائی صنف ہے. شعر و داستان زیروک کی ٹیکنیکل آلات و نقطوں پر بلوچی قومی انسٹرومنٹ سروز و دمبورک کی میٹھی سنگت میں گائی جاتی ہیں. یہ صنف اس خطے کی موسیقی میں بلوچوں کی میراث ہے جس پر بلوچ بجا طور پر فخر کرتے ہیں. بلوچی موسیقی صوت یعنی گیت و گانا, موتک یعنی مرثیہ, زیروک و لیکو فراکیہ گیت جیسے اصناف کی چاشنی سے بھرپور ہے. یہ آلو لاڑو نازیں یعنی شادی بیاہ کے گیت, لیلو یعنی لوری, سپت زچگی کے گیت, چوگان, مالد, شیپرجا یعنی روحانی و مذہبی صفت و ثنا, امبا یعنی مچیروں کا گیت, ڈیہی یعنی وطن کے لیے گائی جانے والی گیتوں کے باعث اپنی جداگانہ اور معنویت کے لحاظ سے خوبصورت کیفیات کے حوالے سے تاثیر سے بھرپور اصناف ہیں. انہی اصناف میں سے گیت اور غزل کا ہمارا خوشگلو و خوش انداز گائک جناب نور محمد نورل صاحب آج اس میرانی دیوان میں تشریف فرما ہیں اور مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں ان سے متعلق آپ سے مخاطب ہوں. محترم استاد نورل صاحب نے ہمارے نامور شاعر, ادیب, مورخ اور سیاستدان جناب میر گل خان نصیر کے آبائی شعر نوشکی میں 1944 میں محترم صوفی بختیار کے گھر میں آنکھ کھولی. جناب نور محمد صاحب کا ایک عام بلوچ سے بلوچی زبان کے عظیم گلوکار نور محمد نورل بننے تک کا سفر بہت کٹن رہا ہے. ان کو بچپن میں موسیقی کا جنون بڑے بھائی محمد ایاد سے رباب سننے اور گیت گنگنانے سے ہوا. رباب کے نازک تاروں سے وجود میں آنے والی پرسوز موسیقی نور محمد کے وجود پر اتنا اثر کر گئے کہ وہ بلوچوں کے جدید دور کے پسندیدہ ساز بینجو سیکھنے کی خواہش دل میں لے کر موسیقی گروپ کا حصہ بن گئے. اس سفر کا آغاز بچپن میں والدین کے ساتھ سیون شریف کی زیارت اور وہاں سے کراچی کے قدیم بستی لیاری میں رہائش اختیار کرنے سے ہوتا ہے, جو مستقبل میں گلوکار بننے کی راہ ہموار کرتا ہے.
बड़े भाई की कपड़ों की इस्त्री की जिस दुकान में नूर मोहम्मद मजदूरी करता था, उसके बिल्कुल सामने शास्त्रीय मौसीकी के नामवर गायक और इंटरनेशनल फुटबॉलर उस्ताद मोहम्मद उमर बलूच का क्लब हुआ करता था। क्लब से उस्ताद और शागिर्दों की राग रागनियों में लिपटी खुशकुन आलाप फिजा में मौसीकी के खुशनुमा रंग बिखेरते और ये रंग नूरल पर बलूची द्रीन बनकर बीबी फातिमा का गिदान बुनते। नूरल मौसीकी के इस गिदान में ख्वाबों के अस्पे दुलदुल पर जम्माज अकी की जिंदगी में स्त्री हाथ में लिए कमीज की सिलवटें यूं सीधी करता गोया तबले की ताल पर उस्ताद उमर की आलाप की तान लंबी खिंच जाए और नूरल इसी आलाप में बह जाता। उनका शौक बाई के जरिए उस्ताद मोहम्मद उमर की शागिर्दी का प्याला नोशने का बायस बना। गो के नूरल ने मौसीकी का पहल बेंजू बजाने से उस्ताद याकूब बलोच से किया था, मगर चूंकि उनमें गायकी के बेपाया जौहर पैदाइशी मौजूद थे, सो ये साजिंदे के बजाय गायक बन गए। उस्ताद नूरल न सिर्फ बाद के ज़मानों में बलोचों के अजीम और तारीख साज गुलकार के तौर पर नाम और शोहरत कमा गए, ये शायर और अदीब भी बन गए और मौसीकी के साथ साथ बलूची अदब की भी खिदमत सर अंजाम देने लगे। उस्ताद नूरल को 1980 में दुबई में रोज़गार के दौरान बलूच क्लब के नाम से बैन अवी तौर पर गाने के साथ साथ सिखाने का भी मौका मिला। इस ज़माने में इनको मायानाज गज़ल गायक जनाब जगजीत सिंह की सोहबत मैसर आई, जहाँ ये दोनों अजीम गुलकार एक ही क्लब में अपनी उर्दू गज़लों से सामईन के कानों में रस घोलते रहे। उस्ताद नूरल ने 1995 के दिहाई में पुराशोभ सियासी दौर में आशूबी गीत गाने के अमल का जब आगाज़ किया तो नौजवान बलूच तलबा का खून गरमाते रहे। उसी ज़माने में गाया हुआ उस्ताद अब्दुल मजीद ग्वादरी का शेर चौक्कें बलूचानी माँ चौक्कें बलूचानी न सिर्फ मकबूलियत कि आसमान तक पहुंच गया, बल्कि इसकी शेरी मानवियत, जोश से लबरेज हंग, चाशनी से भरपूर धुन और खूबसूरत अंदाज गायकी बलूची मौसीकी सियासत और बलूचियत में क्लासिक बन गया। जब ये गज़ल गाते तो यकबरी दोस्त अगा तो मनी कोल्ला ब्याए वती बुरवाना मुरवारद सुरीनी बिशिंगी मूद मलगोरा बजेना गाकर महबूबा की फिराक में मखबूर दिलों को मोम करते। जब ये बच्चों के गीत गाते तो तंकिन तो तहारिंत कीमती सी अजारिंत बहुशित चींत तो पंगिंत से कोदिका ने बलूच उनकी हर तान पर न सिर्फ हम आवाज होकर झूमते, बल्कि खेल कूद का लुत्फ दोबाला हो जाता। फोक मौसीकी पर आ जाते तो मदक कप्ता कला कोटा चितौर वशें चुबिस्कोटा गो मसारे मल्लग जिन्हें शौकी तुच्छी आजारे, जैसे गीदी सोच से सामहीन खुद को किसी दूर गांव के मंडेर पर पाते और मंजर नाजुक अंदाम महगुल व महपरियों से अमकलाम होने का गुमान देता। लेकिन बलूची मौसीकी पर इन्होंने जो एहसान किया है वो इनके गाए हुए एपिक्स हैं। कदीम मंजूम दास्तान जो हमारे पहलवान ज़हीरों की सूरत में गाते थे, जदीदियत की सैलाब में बह गए और सुनने में मतरूक होकर रह गए। उस्ताद नूरल ने मंजूम दास्तान जदीद इंस्ट्रूमेंट के साथ नए अंग में गाने का आगाज़ किया। ये न सिर्फ बलूची क्लासिकल मौसीकी के दिलदादा बुजुर्गों में मकबूल हो गए, कदीम तर्ज गायकी यानी दास्तान व शेर व ज़हीरों से नाशना नई नस्ल में भी पसंद किए जाने लगे। यही वजह है कि उस्ताद नूरल जो ही स्टेज पर जलवा अफरोज़ होते हैं, सामीन उनसे आनी और शेख मुरीद का मंजूम दास्तान मक्के दरबंदे कपूत पिरियाता मका नालगो जंगा पिरमनी भालादा मजन का फरमाइश ज़रूर करते हैं। यूँ तो मंजूम बलूची दास्तान व शेर बहुत से मारूफ बलूच गायक हजरात ने भी गाए हैं, मगर नूर मोहम्मद नूरल इनको गाने में बाजी ले गया है। वो एक नए असलोब को मुतारफ़ करने में कमाओका कामयाब हुए हैं, इसीलिए मैं इनको बलूची मौसीकी का ट्रेंड सेटर कहूँगा।
इनका गाया हुआ मुल्ला फाजुल का मशहूर क्लासिकल शेर बागानी कपूदर सब्जें तूती जेमलो वश लफ्जें हो, या कि जी अमा बारी के हलब रिंदे जागहत हो, या किया सदों की रोमानवी दास्तान का जिक्र करूं, या फिर मुल्ला इज़्ज़त वा मेरो की दास्तान लाजवाल का किस्सा जो उस्ताद नूरल की मधुर आवाज़ में मकबूल हुए। इन जैसे बेशुमार मंजूम दास्तान जिनका सुनना मौसीकी के ज़रिए कम-ओ-बेश मतरूक हो चुका था, बेवक़्त करार देकर समातों से टकराने से महरूम हो गए थे, उस्ताद नूरल के ज़रिए न सिर्फ मौसीकी में अमर हो गए, नौजवानों को उन्हीं के वसीले ज़ुबानी अज़बर भी हो गए। उस्ताद नूरल की इस तरह की गायकी का फहरिस्त बहुत वसी है, मगर तंगी वक्त मजलिस के बायस इख्तिसार से काम लेना पड़ रहा है। उस्ताद नूरल न सिर्फ ईरान, कतर और बहरीन का सकाफ़ती दौरा करते रहे हैं, उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात और सुल्तनत ऑफ ओमान में अपनी तवील क़याम और रोज़गार के दौरान मौसीकी के अपने कलब के वसीले अपना फ़न दिलदादगान मौसीकी में भी मुंतकिल किया है। रेडियो कराची, क्वेटा, तुरबत, PTV क्वेटा के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहे और मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल न सिर्फ गुलकार हैं, ये अमजद शख्सियत के मालिक हैं। ये बलूच कौम का सरमाया है। इन्होंने अपनी शायरी और कलमकारी से बलूची अदब की भी खिदमत की है। इनका शेरी मजमुआ छाड़, बलूची ज़रबुल मिसल की किताब बतल व गालरीच और मौसीकी के मौजू पर साज व ज़ेमिल के नाम से किताबें छप चुकी हैं। मज़ीद बराए इनकी आने वाली तसनीफ़ात में मौसीकी पर एक किताब, उर्दू शायरी का मजमुआ, बलूची शायरी की 2 किताबें भी जल्द क़ारीन तक पहुँच जाएंगी। जनाब उस्ताद नूरल बेशुमार निजी, शाही व शादी मजालिस में गाए हुए गीत व गज़लों के अलावा 224 एल्बम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। गीत व गज़लें, मंजूम दास्तान, आलो लाड़ो नाज़ें गाने का इनका ये सफ़र 78 साल की उम्र में भी जारी है और हमारी ख्वाहिश है ये सदा गाते रहें, अशार कहते रहें, बलूची अदब में अपना हिस्सा डालते रहें। बलूची मौसीकी और अदब की दुनिया में इनका नाम हमेशा दरख्शां सितारे की मानिंद जगमगाता रहेगा। इख्तिताम इस जुमले से करूँगा कि एक आध सफ़े पर मुश्तमिल गुफ्तगू से उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल की शख्सियत और इनके फ़न का अहाता करना दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है, जो मुझ नाचीज़ के बस से यकीनन बाहर है। बहुत शुक्रिया। बलूची म्यूजिक प्रमोटर्स सोसाइटी।